A very good morning, children. Welcome back once again in online class of civics. Children, in our previous class, we have revised chapter 1 democracy, isn't it? And today we are going to revise chapter 2, that is pillars of democracy. So children, everyone, please be ready with your book. Open your book, come on. Yes. And children, this chapter will also come in your half yearly exams. Okay. So all the chapter which you have studied in the month of April, May, that all the chapter will be coming in your half yearly exam. So today in pillars of chapter we are going to cover topic that is enlightened citizens, then a wise leadership, then sound public opinion and accommodation of differences. So these are the topic which we will discuss in our today's class. Now children, first tell me what do you mean by pillars? Pillars का मतलब क्या होता है? Yes, अभी चिल्ड्रेन देखिए घर वगैरह बनाया जाता है तो मोस्टली क्या चीजें जरूरत होती है, पिलर्स की जरूरत पड़ती है ना, राइट? तभी तो वो मजबूती दे पाएगी किसी भी चीज को, राइट? और अगर हम स्कूल की बात करें, सो द स्कूल शुड फंक्शन प्रॉपरली, ओके, स्मूथली. सो क्या क्या चीजों की जरूरत है? all the school management, our director ma'am, principal sir, all the teachers, the staff members, okay, the technical staffs, right, office staff. So all the members are required, and even you, all of you, even the students should also be there, right? So all these things are the pillars. Yes. और अगर चिल्ड्रन, अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ आई विल टेक चेयर का, अगर हम एग्जाम्पल्स ले, तो चिल्ड्रन चेयर अगर अपनी बराबर तरीके से खड़े रहे, राइट, टिके हुए, तो उसके लिए क्या उनके 4 लेग्स जो होते हैं वो जरूरी है, होना चाहिए. अगर वो नहीं रहेगा तो क्या चेयर बराबर से खड़ी रह पाएगी, टिक पाएगी? नहीं, वो गिर जाएगी, राइट? तो वो क्या है, एक पिलर्स है. तो अब डेमोक्रेसी में भी चिल्ड्रन कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो विच आर द एलिमेंट? दैट इज एनलाइटेड सिटीजन्स, then sound public opinion, wise leadership, accommodation of differences, disciplined citizens. So all these things, okay, these are the key elements for successful working of a democracy. And what is the meaning of democracy, children? The word democracy is derived from Greek word, that is demos means people and kratos means power, right? That means people's power, or you can say people's rule. So in democratic country, in whose hand the powers are there, supreme power, it lies in the hands of the people, right? Yes, that is why our government is different as compared to other countries, right? That is why it is called as best form of government. Understood? So children, just wait for a while. Now I am sharing the screen. Then we will discuss our today's topic. Yes. So chapter 2, that is pillars of democracy. Now see children, we have seen that democracy is considered as the best form of government. और हम सभी जानते हैं क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया चिल्ड्रेन? बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच द पीपल हैव द पावर टू से, yes, they can speak, and the government has to consider the opinion of everyone, right? They have to listen the wishes, the issues of the people. In this, the people had the powers. The powers lies in the hands of people. That is why it is the best form of government. क्योंकि अगर हम मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे एक किंग होता है जिसका सुप्रीम पावर चलता है, यस, वही रूल करता है और उसमें लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता है.
अब इफ वी विल टॉक अबाउट डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो एक पर्सन होता है वो भी एकदम स्ट्रिक्ट होता है, राइट, एकदम रिजिड होता है, जिसके हाथ में सारे पावर्स होते हैं। तो डेमोक्रेट सॉरी दैट मीन्स डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी क्या होता है, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होती, कोई पावर्स नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई our government is the best form of government, that is democratic government. So in this chapter we will discuss those features of democracy. So हम उस फीचर्स, उस एलिमेंट की बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी डेमोक्रेसी को स्पेशल बनाता है, जो सपोर्ट करता है, ठीक है। So these elements are essential for the condition for the successful working of a democratic government, right? Now next, see, enlightened citizens. Now what do you mean by the word enlightened, children? Enlightened means you should be educated, you should be aware, you should be informed, okay, you should be uh, take interest in all the political matters, you should know whatever is going in our surroundings, okay, that everything we should know. That means the enlightened citizens. We know that the democracy stands for expression of will of the people, right? So it is the very basis of a democratic government. In democracy, children, changes are brought about the collective will of the people and not by use of force. So if you want to change anything, if something uh, is not going properly, if any laws are not suitable for the people, so we can criticize it, right, but in peaceful manner, with the help of through through marches, through protest, yes or no, through signature campaigns, in peaceful manner we can criticize it. Or if any law is not for the betterment of the people, so we can criticize it, and it is not, we don't, it is not used, any force is not used. To make the right choice and to arrive at a right decision, every citizen should be well informed and socially responsive. So, what do you mean by that, children? That every citizen should be well informed, well aware. Understood? For example, now, children, we will say, for example, see, for A person, B person, okay, and C person. Three persons are there. One person says that we should get a free food, and other person is telling that no, it should be a paid food. Understood? Whatever the food we are getting, we should pay for that. And one person is saying that no, we should get a food with, we don't have to pay anything for that, so free food should be there. Now everyone opinion is different, but both are correct. Some, this A person is also right, B is also right, right? And for example, now person C is also there and he is very poor. तो चिल्ड्रन क्या होगा, उनको भी फूड मिले, राइट, बट एट अ मिनिमम कॉस्ट, ना के बराबर पैसा उनको देना पड़े कोई भी चीज खरीदने के लिए, राइट। अगर चिल्ड्रन सपोज अगर हम खाने के लिए पैसा नहीं देंगे, तो जो गवर्नमेंट को जो रोड्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, राइट, हॉस्पिटल्स वगैरह का जो काम होता है, और भी सारी जो चीज़ें गवर्नमेंट को मैनेज करनी होती है, अगर वो सबको फ्री में फूड प्रोवाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट के जो फंड है जो है वो कैसे रहेंगे, सब खाली हो जाएंगे। गवर्नमेंट सबकी हेल्प कर पाएगा, कुछ बिल्डअप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऐसा होना चाहिए कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स की जाए जो सभी लोग अफोर्ड कर ले, राइट, पुअर पर्सन के लिए भी आसानी हो जाए और जो दूसरे क्लासेस के लोग हैं उनको भी मिले। अंडरस्टूड? और एनलाइटेड सिटीजन वो होते हैं चिल्ड्रन जो, जिन्हें पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, वो अपने हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाए और कोई राइट डिसीजन ले पाए। अंडरस्टूड? So that is called an enlightened citizen. It does not mean that they should be highly educated. और enlightened citizen का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत, आप ज़्यादा एजुकेटेड है, आपके पास हाई डिग्री है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है। मेन थिंग क्या होना चाहिए चिल्ड्रन, यू शुड बी पॉलिटिकल अवेयर, ओके, यू शुड नो
कि आपको आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, किसकी गवर्नमेंट बन रही है, क्या क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, क्या क्या मीटिंग्स उन्होंने कंडक्ट की है, और जो लीडर्स हैं हमारे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो नेशंस के लिए, सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वी शुड बी इन्फॉर्म, वी शुड बी अवेयर। दैट इज कॉल्ड एन एनलाइटेड सिटीजन। भले ही आप एजुकेटेड हो और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो उसको हम एनलाइटेड सिटीजन नहीं कहेंगे, ठीक है, बट दैट शुड बी एनलाइटेड इनफ टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। वो सही डिसीजन ले सके कि क्या सही है सोसाइटी के लिए, राइट, सभी लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन वो ले सके और उसी तरीके से एक्ट कर सके। Thus, political awareness is an important condition of a democracy. Understood? Now, next. See, politically enlightened citizen will be able to judge the performance of the government and make the correct choice of their respective by evaluating the merits and the demerits of the different candidates. Now, politically enlightened citizens children will be able to judge the performance of the government, make the correct choice when we know what are the demerits. जब हम किसी चीज़ को एग्जामाइन करेंगे, राइट, अगर हम इंटरेस्ट लेंगे पॉलिटिक्स में, हम पता करेंगे कि जो जो चीज़ें चल रही है वो सही है कि नहीं है, जो भी गवर्नमेंट है वो अपना काम सही तरीके से कर रही है कि नहीं, राइट, क्योंकि जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी सही रहेगी, राइट, वो लोगों की जो प्रोमिसेस है वो फुलफिल कर पाएगी कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों का हमें कब पता चलेगा, जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, राइट, हमें पता होनी चाहिए कि क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट है, राइट, किसी भी गवर्नमेंट का या कोई भी चीज़, ओके, हमें पता होनी चाहिए। Such voter will not be easily swayed by false promises made by the candidate or by the money or muscles power. Okay? तो अगर हमें सब चीज़ें पता होगी, राइट, तो हम क्या किसी की बातों पे, फॉल्स प्रोमिसेस पे हम विश्वास कर लेंगे, क्या हम अपना वोट किसी को भी दे देंगे, राइट, जो कि कुछ काम ही नहीं करेगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, ओके, भले उन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए थे उन्होंने वो नहीं पूरा किया, तो क्या हम उस पर्सन को दोबारा इलेक्ट करेंगे चिल्ड्रन, हम उनको नहीं इलेक्ट करेंगे, ओके। और अगर हमें कोई थ्रू मसल पावर यूजिंग बाय फोर्स हमें हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा या हमें मनी देने की कोई कोशिश करेगा, तो क्या हम किसी को भी वोट कर देंगे, हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ कब होगी, जब हम अवेयर हो, जब हमें इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, राइट। कुछ लोग तो वोट देते ही नहीं है, राइट, तो ऐसा नहीं करना है, हमें सारी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यस, वाइज लीडरशिप। वाइज लीडरशिप मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, द रिप्रेजेंटेटिव, ओके, जो भी हमारे होते हैं लीडर, दे शुड बी ट्राई टू अवेयर एवरी मीन्स हर चीज़ें जो भी उन लोग लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम्स ला रहे हैं, वो हमें इन्फॉर्म करते रहें टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल और थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू मैनिफेस्टो, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें बताते रहें। एंड ही शुड बी हॉनेस्ट, सेल्फलेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे या अपनी कम्युनिटी के लिए ही केवल सोचे, उनको ऐसा नहीं करना है, उनको पूरे नेशंस के बारे में सोचना है, राइट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन ही हैज टू टेक द स्टेप। So each large countries people cannot directly administer themselves, right, so they elect political leaders. So our country is also a large country, right, we have a too much population in our country, so that is why we can't directly administer, so that is why we have chosen our leader, our representative who will represent in them in the legislature. Elections are held elections are important part of our democracy. Different political party children, they contest the elections, right?
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राइट, इलेक्शंस की जाती हैं और वो लोग अपने जो मेन हेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो लोग उनको खड़ा करते हैं इलेक्शंस के। हर एक पार्टी का अलग सिंबल्स होता है, साइंस होता है, राइट, अलग अलग उनके पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मैनिफेस्टो होते हैं। So the party leader enlightened the voters at the time of elections. That means what, children? It is the responsibility of that leader, right, to aware the people. So how they can aware, children? They can conduct meetings, to then through newspaper, through news channel. They can give the messages to the people, right? They can give the information. Yes, exactly, we can say the information. They can aware us. So as part of the election campaign, several public meetings are also held, right? अब जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो पब्लिक मीटिंग्स होती है, इन विच क्या डिस्कस होते हैं, चिल्ड्रन? वेरियस इश्यूज एंड प्रोग्राम्स आर डिस्कस. सो दिस पीपल हेल्प टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट whom टू वोट फॉर. तो इससे हमें होता है कि हाँ, हमें किसे वोट देना चाहिए. सो दिस हेल्प पीपल टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट whom टू वोट फॉर. And once elections are over, the party which gets the majority, और एक बार children elections हो गया, so though the party which gets the majority vote, they will form the government. Yes, and if suppose if there are no parties is get the majority, so what way which government will be formed, children? A coalition government will be formed. So in that, the two or more party, they will come together and they will form the government. So that is called as a coalition government. Understood? And this wise leadership, they should be selfless and they should consider national interest, not only particular profit. He should not see his own profit. He should provide correct data, correct information to everyone. Now, thus, if the voters are enlightened, they will only elect leaders who are efficient. अगर हम भी अवेयर हो, चिल्ड्रन, हमने देखा एनलाइटेड होना है हमें, राइट? वी शुड बी अवेयर, इन्फॉर्म, राइट? तो अगर हमें सारी चीज़ें पता होगी तो हम किसी करेक्ट पर्सन को ही इलेक्ट करेंगे, राइट? जो एफिशिएंट हो, जो कमिटेड हो, जो अपनी प्रोमिस को पूरा कर सके, जो उन्होंने बातें की है वो सारी वो करके दिखाएं. So if such wise leaders run the government, the country will progress. Yes, that is true, in a truly democratic manner. Now next. So hope you have understood the point of wise leadership also. Now next point, that is sound public opinion. Now children, what do you mean by public opinion? Public opinion, children, it is the wishes of the people or issues or problem may be described, children, it as a public opinion. लोगों की wishes क्या है, लोगों की problems क्या है, right? वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? public opinion. और हम अपना ओपिनियन एक तो थ्रू इलेक्शंस के थ्रू शेयर करते हैं और दूसरा चीज़ है, चिल्ड्रन, if anything is law or anything is not appropriate and if you our some wishes are there, so we criticize it, right? Through, so therefore we conduct marches, protests, signature campaigns. So that is the other way also to express our opinion in the democratic government, right? And what do you mean by sound public opinion, children? अभी देखिए, साउंड पब्लिक ओपिनियन का मतलब, चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना की बात कर ली जाए, नो, सो देयर वाज सर्टेन डिस्प्यूट, दिस आर्ग्यूमेंट, यस, सम कॉन्फ्लिक्ट वे देयर, किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट हुआ था, राइट? तो हमने क्या किया था, चिल्ड्रन, कि जो हमारे चाइनीज प्रोडक्ट है जो हमें उसको नहीं खरीदना है, वी शुड बॉयकॉट देम, राइट? तो ये क्या हुआ, चिल्ड्रन, अभी इसमें सभी इंडियंस ने, ज़्यादातर लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने हाँ किया था कि वी शुड बॉयकॉट ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट, कि हमें उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है. तो इससे क्या होता है, चिल्ड्रन, मतलब जिसमें मेजॉरिटी लोगों का हमें वोट मिल रहा हो, राइट? तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इसको कहा गया है साउंड पब्लिक ओपिनियन, जिसमें ज़्यादातर लोग एक जैसा सोचते हैं, लोगों की ओपिनियन एक जैसी हो. बट जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चिल्ड्रन, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर टाइम सभी लोगों का ओपिनियन भी सेम. ओके, सो पब्लिक ओपिनियन, चिल्ड्रन, एज अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेसी.
A democratic system grants people the right to formulate sound public opinion and give the right to express it properly. No democratic government can ignore public opinion. तो कोई भी democratic government है किसी भी कंट्री में तो वो लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती. उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो विशेष हैं, वो उनको सुननी होगी. जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों को वो इग्नोर नहीं कर सकते. If they wants to be in a power, right? He should be honest. If the government ignores or try to suppress public opinion, people can remove it in the next elections, right? और अगर हमने किसी को गलत मतलब किसी को चूज भी कर लिया और अगर हमें लगा कि ये पर्सन अपना काम नहीं कर रहा है तो क्या हम इनको वोट देंगे दोबारा? हम इनको वोट नहीं देंगे, राइट? क्योंकि हमें कैसा एक लीडर चाहिए चिल्ड्रन कि जो सारे लोगों पूरे नेशंस के बारे में सोचे, राइट? जो पूरी कंट्री को लेकर चले, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचे या एक पर्टिकुलर रिलीजन का सोसाइटी के बारे में सोचे या कम्युनिटी के बारे में सोचे. हमें ऐसा नहीं चाहिए. No, so what is public opinion? That we have seen the wishes of the people or any issue or problem may be described as a public opinion. So it may not be the opinion of the all the people. तो ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ों के लिए कुछ कुछ बातें ऐसी भी ओपिनियन होती है चिल्ड्रन कि सभी लोगों का व्यूज़ अलग अलग होता है हर एक चीज़ों के लिए. तो कुछ चीज़ों में सभी लोगों का हमें मेजॉरिटी भी मिलता है और कुछ लोग माइनॉरिटी में भी होते हैं जो लोग अपोज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए. So it's generally the opinion of the majority of the people. At times even a minority may express an opinion. So जो minorities हैं वो भी अपना opinions express कर सकते हैं. Which may be the interest of the entire community. So वो भी कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो पूरी community को लिए वो benefit हो, right? It is going to benefit that. Enlightened citizen led by wise leaders कैन क्रिएट अ साउंड पब्लिक ओपिनियन. तो हमारी कंट्री के लिए दोनों ही ज़रूरत है. हमें होना है क्या? हमें अवेयर होना है, हमें एजुकेटेड, हमें इन्फॉर्म्ड रहना है, राइट? एनलाइटेड रहना है. हमें सारी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट लेना है और वाइस लीडर भी होने चाहिए जो सारी चीज़ें लोग वो हर एक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सके. सारी जो लोगों की प्रॉब्लम्स है वो लीडर उसको सॉल्व कर सके, राइट? सभी लोगों के बारे में सोचें. Such as political party and mass media, they help in formulating public opinion, right? So children, अब और बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, right? जो सपोर्ट करती है जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और सबसे इम्पोर्टेंट मास मीडिया. हम तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन लेकर आता है चिल्ड्रन? थ्रू मास मीडिया हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आती है. थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन, थ्रू न्यूज़ चैनल, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन, थ्रू वॉलंटरी एसोसिएशन, थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज. ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है. यस, सो दिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड एनीथिंग, राइट? वी टेक एक्शन अगेन. सो इफ दिस एजेंसी फंक्शन सेल्फलेसली मीन्स सेल्फलेसली अगर वो काम करें बिना अपने किसी मतलब के लिए केवल अपने प्रॉफिट देखें, सो कंट्री विल हैव अ साउंड पब्लिक ओपिनियन. So which is so very essential for a successful working of a democracy. For a true democracy ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है. Now next topic. Sorry, wait a minute. One more is there. Yes. Yeah, the next topic that is accommodation of differences. Now what do you mean by accommodation, children? In simple terms, children कह सकते हैं हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है किसी की भी बातों को. हमें जैसे अगर सपोज चिल्ड्रन मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी की बात करें, दो पार्टी है जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो हम उनको रूलिंग पार्टी कहते हैं. और उसके अगेंस्ट जिनको कम वोट मिलते हैं उनको हम माइनॉरिटी पार्टी कहते हैं, राइट? तो ये दोनों पार्टी को क्या करना है? अगर ये कुछ अपना व्यूज़ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनको सुनना है अगर वो कोई लॉस बना रहे हैं तो, राइट? ऐसा नहीं कि नहीं उनको इग्नोर. और माइनॉरिटी का भी काम क्या है? वो भी एक साथ मिलकर दोनों काम करें, राइट? दोनों सारी चीज़ों को अडेप्ट करें, एडजस्ट करें, कोऑपरेट करें और काम करें. सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय मेजॉर पार्टी और अ कोलिएशन ऑफ पार्टी दैट गेट्स द मैंडेट ऑफ द पीपल. व्हाट डू यू मीन बाय मैंडेट? दैट मीन्स द ऑफिशियल कमांड और ऑर्डर in terms of majority of seats or vote. What happens to minority then? Can then be ignored or neglected?
चिल्ड्रेन? ऐसा हो सकता है चिल्ड्रेन कि अगर जो रूलिंग पार्टी है उनको वोट मिला तो वही अपना सारा पावर आजमाएंगे और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको वो निग्लेक्ट कर देंगे, या उनको ये कह लीजिए कि उनको वो कुछ ऑर्डर पास कर दे रही कि नहीं आपको हाउस अरेस्ट अंडर अरेस्ट कर दिया जाएगा या आपको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि मेजोरिटी सीट हमें मिली है, हम रूलिंग पार्टी है। बट आपने ऐसा केस कभी भी सुना है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि क्या है, माइनॉरिटी ग्रुप और मेजोरिटी ग्रुप दोनों को मिलकर एक साथ काम करना है। यस, so what happens to minority can be ignored or neglected? No. In a democracy, every group, however small it may be, must be allowed to voice its opinion. चाहे वो ग्रुप कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, शेयर कर सके, राइट? टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस. Now these are the very important, children. Remember this. These are the two important features of our democracy. What do you mean by tolerance, children? The patience, right? हमें धीरज रखना है, right? धैर्य रखना है. हमें लोगों की बातें, जो भी अगर पार्टी अगर काम कर रही है, हमें एक दूसरे की बातों को सुनना है, समझना है, फिर काम करना है, right? So that is most important. And what do you mean by inclusiveness? That means हम सभी लोगों को एक साथ आकर, एक साथ मिलकर काम करना है. Understood? So these are the two important features of our democracy. So जो भी अगर मेजॉरिटी पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है तो वो माइनॉरिटी को भी एक्सेप्ट करना है. ऐसा नहीं कि वो बस बेफजूल क्रिटिसाइज करते चले जाए, और अगर माइनॉरिटी का भी कुछ ओपिनियन है तो वो भी एक्सप्रेस कर सके, जो मेजॉरिटी को उनको सुनना होगा. इज दैट क्लियर? So let us suppose a majority government after coming to power decide to keep the leader of the opposition under arrest. जो हमने कहा कि हमें आपको अरेस्ट कर देंगे माइनॉरिटी, in order to keep them away from the organizing people against the government policies, right? तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मेजॉरिटी पार्टी इस तरीके का डिसीजन क्या वो ले सकती है? पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? दोनों ही पार्टी इक्वली काम करती है, राइट? सो कैन इट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? बट अगर किसी इस तरीके से कहीं होगा, राइट, मेजॉरिटी पार्टी ही केवल सारे पावर्स अपने हाथ में लेकर वही रूल कर रही है, वो किसी और को अधिकार नहीं देगी, तो क्या हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं ट्रू फॉर्म में? नो, वी कांट कॉल इट, राइट? सो नो, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है, राइट? सो नो, इट इज नॉट अ क्लियर केस ऑफ, एंड सो नो, दैट मीन्स इट इज अ क्लियर केस ऑफ intolerance, right? Which destroy the every foundation of a democracy, right? So we should be tolerance and we should inclusiveness, right? That means we should come together. हमें सबको मिलकर काम करना है और सबका ओपिनियन हमें कंसिडर करना है. किसी को भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई कॉमन पीपल हो, राइट? हमें सभी की बातें सुननी है. इज दैट क्लियर? बिकॉज in democratic government the people had the power, they have the right to speak, they have the right to share their views, their ideas, their issues. Is that clear? So children, just wait. Yes, so just as intolerant majority can damage, okay, the democratic structure, so also an intolerant minority can do the same. और उसी जैसे मेजॉरिटी अगर कुछ डैमेज कर रही है तो उसी तरीके से माइनॉरिटी भी कर सकती है, बट इनको ऐसा नहीं करना है. अननेसेसरी एजिटेशन, बान, वायलेंट प्रोटेस्ट बिकम फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटी इंटॉलरेंस व्हेन दे क्रिपल पब्लिक लाइफ. तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है अननेसेसरी, ओके? लोगों को प्रॉब्लम नहीं देना है एंड क्रिएट. अभी ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? लोगों को प्रॉब्लम होगी, राइट? दैट विल बी रोड ब्लॉक फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल. So friendly programs of government should be there. Therefore, it is essential in democracy, children, to respect the freedom of the majority to run the government, कि वो अपने काम अच्छी तरीके से कर सके. And the minority also, children, they should be given freedom to express its opinion. So the latter also give the minority children the freedom to formulate public opinion against the wrong policies of the government. So a minority party should also be given, if any majority party has made any law, any policies, if it is not correct,
as minority thinks that there should be some changes, so my majority party has to listen whatever the minority party wants to say. As if they are criticizing, he has to listen and he has to change accordingly in his plans, policies and programs. Is that clear? So tolerance, children, is a virtue which makes for a successful democracy, and it is needed among political parties, individual communities, religious body and society at large. So all should respect children, the rights and the views of others also. So since ancient times, children, India has been known for its tolerance also, that is unity in diversity, right? With, in spite of so many differences, children, as we are in our democratic country, there are so many languages, there are different religions, customs, caste, different foods habit, right? Living style is different, food habits are different, then too we all are one, right? So it has welcomed different faces, faith and ideas of the people. So India unity and diversity make it unique, special, right? Among world nations. So children, just wait. Yes. So children, have you understood whatever we have discussed? So children, today we have discussed about chapter 2, right? That is pillars of democracy, and that we have discussed about enlightened citizens, wise leadership, then sound public opinion and accommodation of differences, right? So these were the topic which we have discussed in our today's class, and in next class we will be discussing the rest of the topic. Now what you will do, children, you will read the topic which we have discussed and underline the important words or lines. Is that clear? Goodbye children, take care, have a safe day.